ईरान का लगातार भीषण प्रहार चल रहा है और इजराइल का पलटवार भी है। ईरान पर आईडीएफ की बमबारी हुई है, 40 फाइटर जेट से अटैक हुआ है, 100 मिसाइलों से अटैक हुआ है। आपको बता दें कि कई सैन्य ठिकाने एक साथ तबाह हुए हैं। आपको बताते हैं अराक न्यूक्लियर ठिकाने पर जो अटैक किया है, इसको लेकर बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि एक सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। न्यूक्लियर अटैक के बाद जबरदस्त तबाही मची है। जिस न्यूक्लियर ठिकाने पर अटैक किया गया है, अराक न्यूक्लियर ठिकाना, नातांज परमाणु ठिकाने पर भी अटैक की खबरें हैं। इजराइल पर ईरान का हमला हुआ है, 25 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक हुआ है, 6 शहरों पर भीषण हमला हुआ है। अस्पताल, मकान निशाना यहां पर साधा गया है। हमले में भारी नुकसान की खबरें हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। तो ये सूरत हाल हो गया है। ईरान ने जो ईरान पर आईडीएफ की जो बमबारी हुई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और इजराइल पर ईरान का जो हमला हुआ है वो भी हम लगातार ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, तेल अवीव पर ईरान के विध्वंसक हमले हो रहे हैं। आपको हम बड़ी खबरें बता रहे हैं, लेकिन मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, अराक परमाणु ठिकाना, नातांज परमाणु ठिकाना, यानी दोनों ओर से सबसे ज्यादा परमाणु ठिकानों पर वार हो रहा है, जिसमें 6 शहर भी शामिल हैं। मनीष किसी से बात कर रहे हैं, सुनते क्या कह रहे हैं। बिल्कुल निधि, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो मैं बता दूं कि इस वक्त इजरायली पुलिस के अधिकारी डीन मेरे साथ मौजूद हैं, जो अस्पताल में हुए इस हमले के बारे में बता रहे हैं, साथ ही ये बता रहे हैं कि क्या स्टेटस है। सो प्लीज़ डीन, कंटिन्यू व्हाट यू वर मेंशनिंग अबाउट दिस अटैक, एंड इज देयर एनी कैजुअलिटी और एनी मिसिंग पर्सन, और व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इनसाइड दिस बिल्डिंग? So right now we're not allowing too many people to go inside until the home front command and the firefighters clear that there's no danger of the building collapsing. In terms of missing people, we've ruled out the possibility that there's anybody missing at this stage, and there are various individuals who were injured, but they have since been moved to other hospitals or taken care of on scene. So how many patients were admitted in this hospital before the attack? That's a number that you can ask the hospital spokesperson. What I can tell you on behalf of the Israel police is that the second we got the call, our officers ran into the line of danger to protect and to save our civilians who are clearly the repeated target by the Iranian regime. So a hospital is attacked. No one can, imagine that, when you attack hospitals, when you attack schools, it is the war crime. Absolutely. I don't think that I need to say it for the world to see the example. This is the repeated targets of the Iranian regime. Homes, schools, synagogues, hospitals. The truth speaks for itself on who these monsters are. Unfortunate thing is that the Iranians are claiming that they have not attacked hospital. While you are here, I am here, many persons are here, and even the camera can show that what kind of building this is, but they are saying that this is not hospital. So it seems like that they are attacking civilian authorities, civilian buildings, but at the same time they are just denying. This is a regime that has constantly called for the annihilation of Israel, the United States, all Western ideology and culture. They speak for themselves on who they are. Their actions speak for themselves on who they are. And that is the reason that Israel is continuing, although it's bombing strategic targets, military targets in Iran. It's not just to defend the Israeli people here. It's also to defend the Iranians who have been oppressed under their regime. So, what is your assessment? This building can collapse because of that missile attack? Right now, we have professionals who are on site, engineers, firefighters, professionals who know to tell us what the possibility is of it collapsing. And until then, we're not allowing anybody else to go inside. That we can understand. Thank you so much, Dean. Thank you so much to talking to TV9. Thank you so much. तो आप देख रहे थे इजरायली पुलिस के अधिकारी डीन इस वक्त मुझसे बात करते हुए विस्तार से बता रहे थे हॉस्पिटल के बारे में। उनका कहना यह है कि पुलिस, स्पेशल फोर्स और जो स्पेशल लोग जो कि ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग की हालत को एसेस कर सकते हैं, वो सब अंदर में मौजूद हैं, और उसके बाद फिर हमें इजाज़त दी जाएगी अंदर जाने के लिए, क्योंकि इजरायली पुलिस को ये भी लगता है, इनके सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि मिसाइल का इतना जोरदार इम्पैक्ट होने की वजह से हो सकता है कहीं ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर ना जाए, कहीं
इसके पास की जो बिल्डिंग है वो सब टूट ना जाए, और इसीलिए जब तक कि वो असेसमेंट नहीं हो जाता तब तक वो किसी भी व्यक्ति को नहीं अंदर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अस्पताल में मरीज थे, डॉक्टर थे, उन सब को वहाँ से अभी निकाल लिया गया है, और अब एक्सपर्ट्स जो हैं वो एनालिसिस कर रहे हैं कि अभी क्या कंडीशन है। और इस वक्त आप देखिए कि जिस तरीके से चाहे डॉग स्क्वाड की टीम हो, फायर फाइटर्स की टीम हो, या इमरजेंसी सर्विसेज में रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े टीम हो, या फिर मैं देख पा रहा हूँ जैसे रोहित जरा दिखाइए, वो देखिए वहाँ पर जो आप कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स को देख रहे हैं, वो लोग वहाँ असेसमेंट कर रहे हैं कि जब मिसाइल का अटैक हुआ, सोचिए आप एक बड़ी बिल्डिंग जिसमें कांच का एक बड़ा सा हिस्सा भी है, और उस बिल्डिंग को इस वक्त जो टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं और जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं वो एसेस कर रहे हैं। वो इस बात का आप कहें कि परीक्षण कर रहे हैं कि क्या ये बिल्डिंग अब सुरक्षित है जिसमें आम लोगों को घुसने दिया जाए, या फिर इस बिल्डिंग को अब ढहाना ही होगा, या फिर ये बिल्डिंग अपने आप गिर सकती है। तो एक तरफ जहां मिसाइल के अटैक होने के बाद धुआं निकला है, धुआं लगातार हो रहा है, भारी तबाही हुई है। भारी तबाही के बाद के दृश्य आप देख रहे हैं टीवी 9 के कैमरे पर। इस बिल्डिंग से सटे जो दूसरे और बिल्डिंग हैं उन सब पर भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। वहीं दूसरी तरफ टीवी 9 को एक्सक्लूसिव बात करते हुए इजरायली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि एक बार जब ये क्लियर हो जाएगा कि इस बिल्डिंग में जाना सुरक्षित है या नहीं, उसके बाद वो टीवी 9 को और दूसरे जो मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको इजाज़त देगा। एक बात जो बार बार हम कहना चाहते हैं, युद्ध की रिपोर्टिंग में वैसे ही नहीं भारत नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग टीवी 9 पर भरोसा करते हैं कि आप इस वक्त देख लीजिए, इस वक्त आप किसी भी टेलीविज़न स्क्रीन को देखिए तो टीवी 9 की टीम यहाँ पर मौजूद है। मेरे अलावा मैं देख पा रहा हूँ केवल जो इजराइल के लोकल मीडिया है वो यहाँ पर मौजूद है, वही यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा। तो दुनिया के कुछ चुनिंदा विदेशी नेटवर्क में से एक है जो उस ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्योंकि यकीन मानिए इस अस्पताल में मिसाइल अटैक की धमक यहीं तक नहीं सुनाई देगी। इस अस्पताल में मिसाइल अटैक का जो परिणाम होगा वो दुनिया देखेगी। और आपने देखा भी कि किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से, इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से, इजराइल की सरकार की तरफ से, और लोगों में, इजराइल के लोगों में अब जैसे जैसे इस तरह के अटैक होंगे उतना ही ज़्यादा इजराइल के लोगों में इस बात को लेकर और ज़्यादा गुस्सा है, रोष है कि अब ईरान में जो मौजूदा सरकार है उसको बदलना होगा। देखिए ये इजराइल का सेंटिमेंट्स है, ऐसा नहीं है कि ये मेरा सेंटिमेंट्स है, टीवी 9 का सेंटिमेंट्स है या इंडिया का सेंटिमेंट्स है। सवाल ये है कि ये इजराइल के लोगों का, इजराइल की सरकार का और इजराइल के डिफेंस फोर्सेस का सेंटिमेंट्स है, जिन्हें यह लगता है कि ईरान में जो अभी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनई और उनकी जो रिजीम है अगर उनको नहीं हटाया गया या ख़त्म नहीं किया गया तो ये इजराइल के लिए सही नहीं होगा। इजराइल की मनोदशा मैं बता दूं आपको, इजराइल की अभी मनोदशा ये है कि जो ईरान अपने मिसाइल हमले से इतना ताकतवर है कि इस तरह से वो इजराइल को दहला सकता है, वो ईरान अगर अपनी परमाणु बम बना लेगा तो उसके बाद वो इजराइल को क्या करेगा, फिर तो वो इजराइल को मिटा ही देगा। इसीलिए इसी गुस्से में को, इसी आवेश को अब इजराइल और अधिक आक्रामक तरीके से पलटवार करेगा। ऐसा नहीं है कि इजराइल की तरफ से पलटवार नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे हैं। ईरान और इजराइल की इस जंग में क्या सही है क्या गलत है, लगता है वो रेड लाइन अब क्रॉस हो चुकी है। दोनों तरफ से जोरदार हमले किए जा चुके हैं। ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल से, हाइपरसोनिक मिसाइल से इस्तेमाल कर रहा है और उसका परिणाम है कि इस तरह की भीषण तबाही हो रही है। ये बात तब है जबकि इजराइल के पास दुनिया की सबसे एडवांस और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आयरन डोम है जिसके बारे में दुनिया जानती है। इसके अलावा एरो मिसाइल है जो बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में सक्षम बताई जाती है। इसके अलावा जो डेविड स्लिंग मिसाइल है, डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम है, और अमेरिका का थार्ड है। 4 लेयर की एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद अगर ईरान के मिसाइल यहाँ तबाही मचा सकते हैं तो आप सोचिए कि इजरायली के मन में ईरान के प्रति क्या सोच है। उन्हें क्या लगता है कि अगर ईरान की ये सत्ता बनी रही तो अगर ईरान की सत्ता नहीं बदली तो फिर ईरान इजराइल को मिटाने की कोशिश करेगा, और इससे पहले कि देर हो जाए ईरान को या ईरान की सत्ता को बदलना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ईरान की सत्ता क्या बदलेगी या नहीं बदलेगी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन अमेरिकी बेस से जरूर घेरेबंदी शुरू हुई है। इन तमाम घेरेबंदियों के बावजूद ईरान रुक नहीं रहा है। ईरान बहुत ज्यादा हमले कर रहा है मनीष, जैसा कि आप बता रहे, और कोई असर नहीं हो रहा है ईरान पर। ईरान ऐसा चाहता है कि इजराइल तबाह हो जाए, इजराइल चाहता है ईरान तबाह हो जाए। मनीष, आऊंगी मैं आपके पास, आप एक एक अपडेट वहां से दीजिए।